I feel the circuit is on the rise. Okay. I don't think उनका एक मोटिव होना चाहिए, उनका यही मोटिव होना चाहिए. आपके हिसाब से like what are the few things that an executive board member should like ध्यान देना चाहिए उन्हें so that they can better themselves? मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके अंदर के डेलीगेट को मार डालो. लीडरशिप इज अ स्किल दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर. आई फील गुजरात lacks in that department, the debating culture. People in India look for कि मुझे इतना पैसा देने में कितना मिल रहा है. Right conduct, right knowledge, right faith. The world cannot ignore India for long. A society where everyone has a gun is a peaceful society. India and China will dominate the world. Israel और Palestine. भाई दंगे दंगे कराएंगे आप. पुष्पा फायर है, मैं झुकेगा नहीं. मैंने कॉफी विद करण देखा है, मुझे हैम्पर चाहिए तो मैं बताऊंगा ये क्या है. Welcome to another episode of Voices of Empowerment. Today we are pleased to welcome Mr. Aditya Shah, the Deputy Director of HLCC MN Society. He is currently a civil services aspirant and he has gained his expertise in geopolitics and international relations. He has been chairing MUN conferences since a very long time and he is popularly called Mr. UNHRC. Known for his calm and composed personality, Aditya sir has mentored a lot of delegates and is definitely amongst one of the most favorite executive board members for many delegates. Adi Bhaiya, it's an honor to welcome you on the show. Thank you, Rohan. One of the most but ठीक है. Okay. So, Bhaiya, you have been part of HLCC MN Society since, I guess, it's been almost 9 years. Like, you began as a part of organizing committee and then you were the Director General in HLCC MN. I guess it was the 5th edition in 2017 and you are currently the Deputy Director of HLCC MN Society. So, what inspired you initially to be a part of organizing committee of HLCC MN? Like, can you take us through your journey? Okay. Yeah. So, first of all, मैं like every other student, मैं college में and I was eager to take part in all the activities that were happening. Yeah. It was not कि हाँ मैं MUN के बारे में मुझे पता है, मुझे MUN में part लेना है. I still remember the day when a group of my seniors led by Bushradi entered my classroom. बरूचा सर का ही लेक्चर चल रहा था और वो आए, उन्होंने बोर्ड पे MUN लिखा. ठीक है. एंड लाइक एवरी फर्स्ट टाइमर हम उसको मून प्रोनाउंस कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाई. कॉलेज में भी मून बोलते हैं. मून, ठीक है. HLCC मून. तो वो लोग आए, उन्होंने MUN लिखा एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू MUN एंड टू HLCC MUN. एंड देन दे वर लाइक कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा. तो मेरे दिमाग में दो चीज़ आई कि डेलीगेट बनूंगा तो 2-3 दिन का इवेंट होगा, ऑर्गेनाइज करूंगा तो 2-3 महीने का इवेंट होगा. आई विल इंटरेक्ट विद सीनियर्स एंड इट विल बी फन. सो आई जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. With HLCC MUN, I've also seen myself grow as well. When I joined from the 3rd edition, there were 200 delegates. Now we are going strong and we are aiming for a very great digit, let's say. Yes. So I've also seen HLCC MUN grow with myself, be it as the organizing committee member, then the director general, and then the deputy director general of HLCC MUN Society. So inspiration was honestly to just have fun. Yeah. And I still, whenever I used to go for organizing committee, let's say orientations, I would only say कि if you do work with your friends, it will never seem like work. ठीक है, हमने बेंच उठाई है, हमने पानी की बोतलें ट्रांसफर की है, हमने सब चीजें की है, पर वो कभी लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं. एंड दैट इज द फन एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन एन MUN. यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, उनको पता होगा कि फॉर ऑर्गेनाइजर्स इट्स अ 2 or 3 month इवेंट एंड दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट. सो दैट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट. ऑब्वियसली आफ्टर दैट इट चेंज्ड. वंस आई बिकेम द डायरेक्टर जनरल, आई रियलाइज्ड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, यू आर टेक्निकली द फेस ऑफ दैट MUN, एटलीस्ट फॉर दैट एडिशन. तो जब वो पैम्फलेट बने और उस पर जब कृतज्ञ गुप्ता वाज द सेक्रेटरी जनरल और आदित्य शाह लिखा गया और जब नंबर लिखा गया तब आई रियलाइज कि ओके, नाउ आई रिप्रेजेंट HLCC MUN. एंड देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट सेट इन. एंड उसके बाद आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड इट एज एन इवेंट, लाइक इट इज द इवेंट फॉर मी. So I still feel responsible because whatever I am, whoever I am, it is because of HLCC MUN. So yeah. So अगर हम ये 9 years के स्पैन की बात करें, so आपका सबसे फेवरेट लाइक मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है?
ओके दो है. हाँ. So the first edition when I joined, that was the third edition. Closing ceremony चल रही थी, we were done, बहुत काम हो गया, मज़ा आया. और तब हमारे सेक्रेटरी जनरल गए स्टेज पे लास्ट में and उन्होंने गैवल मारा कि I declare the conference close और सब पागल हो गए. ठीक है. So Lot of that emotions. yeah, so that day I was standing OC की तरह ही साइड में. मैंने रियलाइज किया यार ये करना है लाइफ में. ठीक है, कुछ पता नहीं है, एक डेलीगेशन नहीं किया है मैंने, उस MUN में रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठा है, सिर्फ चिट पासिंग किया है. एंड देन आई वाज एस्पायरिंग कि यार 2 साल बाद सेक्जन तो बनना है. सो एक वो बहुत यादगार था. और जब मैं फाइनली सेक्जन तो नहीं बना, पर ठीक है, जो डिजर्विंग था वही बना, कृतज्ञ गुप्ता. व्हेन आई बिकेम द डायरेक्टर जनरल, तब जब मैंने ऐसे क्लोजिंग में ओपनिंग में बोला था, तो ऑब्वियसली अब डायरेक्टर जनरल को गैवल मिलता नहीं. ठीक है, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है. यस, वो चेंज करने की जरूरत है. तो वो जब था तो आई एंडेड माय स्पीच विद लेट द डिप्लोमेसी बिगिन. एंड देन बस गैवल का हाँ, तो बस part रह गया. तब ऐसे थोड़ी फील आई थी कि हाँ भाई कुछ हो गया लाइफ में. सो या दैट लेट द डिप्लोमेसी बिगिन, वो मेरी डिप्लोमेसी उस दिन से स्टार्ट हो गया आई फील. तो या दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी फ्रॉम HLCCMUN. So भैया हमने like what we have seen so far that हम कोई भी ऐसा प्रेशर का मोमेंट होता है, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जब यू नो वी आर वेरी टेंस्ड, या तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है तो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, या एंड मोमेंट पे ऐसा सब हो जाता है. सो एक ये क्वालिटी आप में देखिए दैट यू आर ऑलवेज काम एंड कंपोज्ड. सो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? लाइक इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक? क्या एक्सपीरियंस ऐसा कुछ आपका हुआ हो उस वजह से, या एनीथिंग? I guess there are 2 or 3 reasons. First, a very strong backing by my seniors, be it Bushradi or obviously our faculty in charge, Bharucha sir. और उसके अलावा एक बहुत मतलब ऐसा लगा, but there is this quote that can you do something about it? Yes, then why are you worrying? Can you do something about it? No, then why are you worrying? So अगर हम कर ही सकते तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा. And I've always had a very very strong team as well. भले ही वो पैम्पलेट पे नाम 2 लोगों का आता है, पर उनको भी पता होता है कि भाई काम सबने किया है. तो एज लॉन्ग एज इट बीट HLCCMUN, आई ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ग्रेट ग्रुप ऑफ जूनियर्स लाइक यू एंड अंकिता और भरूचा सर, बुशरारी. तो आई नो कि अगर मैं नहीं भी कर पाऊंगा ये काम, और ऑब्वियसली दीपेन को भूल नहीं सकते हम, कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो या दीपेन, तो एज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आई फील आई एम ऑलवेज वेरी काम. इफ यू रिमूव दैट देन आई डोंट नो, आई माइट लूज माय कूल. एंड आपका और दिपेन भैया का थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग भी रहता है, लाइक बहुत. या सो वो भी आई गेस काफी कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड या दैट कीप्स द बैलेंस. या दीपेन और मैं वो फायर और वाटर जैसे हैं. Yeah, तो it's fine. एंड समटाइम्स यू रिक्वायर बोथ ऑफ देम. आई मीन देयर आर टाइम्स जब ओसी को डांटना पड़ता है, एंड आई एम वेरी फ्रेंडली, तो शायद मैं उतना उनको डांट नहीं पाता, इतना गुस्सा नहीं कर पाता, तब दीपेन की जरूरत होती है. और कई बार दीपेन इज अ मैन ऑफ एक्शन. ठीक है, ही इज लिटरली अ मैन ऑफ एक्शन. व्हेनेवर यू आस्क हिम, व्हेनेवर यू टेल हिम कि यार ये नहीं होगा, देन ही विल बी लाइक क्यों नहीं होगा, एंड दैट इज हिज पर्सनालिटी. Yes. So he will always be very optimistic, whatever the situation is. So you need someone like that. And then there is me who needs to calm him down. कि भाई ठीक है, टाइम है, हो जाएगा, चिल कर, मैं बात करता हूँ. So yeah, it is very good to have him as the Deputy Director General with me. So yeah, it's an honor serving as the Deputy Director General, because that is also the post that is held by him. Yeah. So yeah. डेफिनेटली. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिपेन भी अगर ज्यादा ऐसे थोड़े अग्रेसिव या गुस्से हो जाए तो आप काम डाउन. हाँ, वो थोड़ा जरूरत होती है. बच्चे फिर बेचारे इतने भी ना डर जाए कि पूरे शेल में चले जाए, तो वो जरूरत है. या सो अगर अभी हम 10th एडिशन की स्पेसिफिकली बात करें, आई गेस जब पॉडकास्ट आएगा उसके आई गेस 2.5 वीक्स बाद ही 10th एडिशन आ जाएगा, सो इट्स वेरी नियर. सो लाइक टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली योर कमिटी, तो इस बार लाइक मैंने ओसी से भी पूछा था बिफोर यू नो दे केम टू नो कि आप इस बार इकोफिन के चेयर हो. सो आई आस्क्ड फ्रॉम द ओसी, नन ऑफ द ओसी मेंबर वाज एबल टू गेस दैट इस बार आप इकोफिन के चेयर होंगे. लाइक दे गेस्ड HRC, CND, स्पेकपोल, WTO, एक जना भी गेस नहीं कर पाया. एंड आई गेस जब आपका पोस्ट भी आया था, मेनी ऑफ द डेलीगेट्स वर आल्सो स्टन्ड. सो
क्या रीजन था इस बार इकोफिन चूज करने का? ऑल्सो आई रिमेम्बर कि आपने अभी जो निर्मा यूनिवर्सिटी का एमएन हुआ था, यू चोज यूएनईपी दिस टाइम, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डिफरेंट कमिटीज? अच्छा, पहले तो आई एम थैंकफुल कि उन लोगों ने लोकसभा जीएलए तो गैस नहीं किया. नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट कमिटी. Option ही नहीं दिया मैंने. मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी उसमें, नहीं है. पर सी आई लाइक challenges. I feel HRC I've done enough. I have जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं दे चुका हूँ उनको. Be it about the committee, about the agenda. Also, when I started, DISEC was my forte. I have done a lot of DISEC. उसके बाद I got interested in CND. So there was a phase when अगर कहीं पे ड्रग्स की कमेटी चल रही है तो आदित्य शाह करेगा. मेरे पेरेंट्स वरिड थे कि तू इतना ड्रग्स की कमेटी क्यों कर रहा है. लाइक नहीं सिर्फ कमेटी की वजह से. एक्चुअली सरप्राइजिंगली वी हैव अ लॉट ऑफ डेलीगेट्स इन यूएनसीएनडी पहले से ही, सो आई गेस वो आपका मेरी वजह से फॉर श्योर. तो नहीं, सो देन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड अ लॉट ऑफ CND ODC. देन because I feel it is not me choosing HRC, it is HRC choosing me. Right now, unfortunately, whenever MUNs happen, there is CSW, there is HRC, there is GA. So HRC repeat होता ही है. तो कहीं ना कहीं HRC ने मुझे choose किया है, I feel, but it's always a fun committee. So I've had my fair share of HRC, and now I am looking for a change, be it UNEP. I prefer the agenda rather than the committee. So if HRC का interesting agenda होगा, then I'll do HRC. If UNEP का होगा तो EP. और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बोला, बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, आई हैड माई फेयर शेयर विद नॉलेज फॉर ऑल द टॉपिक्स. नॉट इन डेप्थ नॉलेज, पर कहीं ना कहीं वो एक नॉलेज आ जाता है. तो उसके लिए आई फील दैट आई कैन डू जस्टिस टू अ लॉट ऑफ कमिटीज, एंड दैट्स व्हाई आई कीप चेंजिंग फॉर द डेलीगेट्स एज वेल. कि भाई मैं एक ही चीज HRC में, वो मेरी शक्ल देख के थोड़ा तो परेशान हो गए होंगे अभी तक. तो आई वांटेड टू चेंज दैट. तो इस बार इकोफिन करते हैं. इट्स फन. So अभी अगर हम करंट MUN की बात करें, so you have been there a part of executive board member since a very long time. You have been chairing a lot of conferences. So current scenario में how do you think MUN circuit as a whole is performing? या आपके हिसाब से where the MUN circuit is like going forward towards? नहीं, I see. Okay, so because of this long period, I have seen gradual decline in increase and then fall, and there is this best part as well, best phase as well. I feel the circuit is on the rise. Okay. It was great before COVID. I feel we do not understand the role or the impact COVID had on the circuit, because एक पूरा generation चला गया. So the reason why I'm still chairing at this age is because I do not have a generation of chairs to carry forward this until now. There are great EB members, upcoming EB members as well. तो एक वाइस चेयर है इकोसॉक का इस बार HSDC में. तो वो रोहन ही है, मुझे बोला गया था कि बोल ले. तो हाँ, तो जैसे there are a lot of great EB members coming in the circuit. तो I feel अब सर्किट राइज हो रहा है, बिकॉज कोविड की वजह से हुआ ये कि वो 2-3 साल जो एक्सपीरियंस EB मेंबर्स थे, या जो एक्सपीरियंस डेलीगेट्स थे जो EB मेंबर्स बनने वाले थे, वो चले गए. अ लॉट ऑफ देम लेफ्ट गुजरात, देयर स्कूल्स और इवन इंडिया. सो वही गैप आ गया, उसकी वजह से शायद क्वालिटी डिक्लाइन हुई, और उस पर बहुत लोग अग्री करते हैं. बट आई फील राइट नाउ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ MUNs दैट आर हैपनिंग इन अहमदाबाद और इन गुजरात, दैट क्वालिटी इज राइजिंग एज वेल. तो आई गेस इट इज एक्साइटिंग. द MUN सीन राइट नाउ इज वेरी एक्साइटिंग. बट आपको लाइक आई हैड अ क्वेश्चन, आपको लगता है कि वो सही पर्पस से ये राइज हो रहा है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पर्सनली कि काफी MUNs का जो मोटिव होता है डेलीगेट्स को बुलाने का, दैट्स क्वाइट डिफरेंट, टू बी ऑनेस्ट. सो that's very true. So this is my personal belief that the chances of you being successful depends a lot on your why. Yes. That why you are doing it. Yeah. And that is why I feel HSCC MUN has been very successful because of our why. कि हम ये MUN कर क्यों रहे हैं. कोई भी चीज अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई इंटेंशन से कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो चीज सक्सेसफुल होगी कि नहीं. यस, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं दैट प्राइवेट MUNs have increased a lot. They are charging exuberant amount for 2 or 3 days. So I guess उनका वाई गलत है कहीं ना कहीं पे, पर आई गेस डेलीगेट्स के लिए इट इज गुड कि कहीं ना कहीं उनको चांस मिल रहा है इतने MUNs करने का. इफ यू डू एन MUN, एक आप जनवरी में कर रहे हो, फिर 6 महीने बाद कर रहे हो, तो वो बहुत गैप आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं इवन इफ देयर पर्पस, द ऑर्गेनाइजर्स पर्पस इज नॉट
in line with why we do Hmm. MUN, it is still good for the delegates. कहीं ना कहीं फुलफिल हो ही जा रहा है जो रेगुलर डेलीगेशंस करते हैं उनका। हाँ, और सी ऑब्वियसली लेट्स से 40 डेलीगेट्स की कमेटी, तो आपको पता है कि सब वहाँ पे सीखने नहीं आए. यू कांट कंट्रोल दैट. Yeah. आप कितना भी अच्छा MUN करो, कोई ना कोई डेलीगेट होंगे जिनका पर्पस शायद कुछ अलग होगा वहाँ आने का. तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर देम, वी आर लुकिंग फॉर द 5 or 10 delegates who are there to learn, to grow, and these 10 delegates will carry forward MUN circuit, not the remaining 20 delegates who are there for socials, for fun, or for whatnot. सो अगर हम इसमें ही एड ऑन करें, द डेलीगेट्स 5-10 गुड डेलीगेट्स होते हैं, सो कहीं ना कहीं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज वेल एज द चेयर दैट बाकी लोगों को अच्छा अवेयरनेस है, बिकॉज दिस वी हैव सीन दैट हमेशा HSCC MUN में भी देर आर एवरी ईयर न्यू पार्टिसिपेंट्स कमिंग, न्यू स्कूल्स होते हैं, वहाँ से बहुत सारे न्यू बच्चे आते हैं एवरी ईयर, दैट कीप्स शफलिंग. सो कहीं ना कहीं न्यू डेलीगेशंस आते हैं एंड हर एक का फर्स्ट टाइम जब होता है MUN, सो everyone feels, most of the students feel overwhelming because ये सब क्या चल रहा है, ये क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या रिसर्च होता है. तो हर एक के दिमाग में ये तो होता है कि हाउ आई कैन बी अ वेरी गुड डेलीगेट और हाउ आई कैन परफॉर्म वेल इन द कॉन्फ्रेंस. सो आपके हिसाब से लाइक what are the specific things that a delegate should focus upon if it's their first time or if they want to do well in the conference? That's a very good question. What should a delegate focus on? Okay, I can have this podcast for 2 hours just answering this, but I'll try to summarize. तो एक दो चीज़ें हैं जो मैं अपने delegates को बताता हूँ. पहली चीज़ जो आपने start की question में, that leadership role. Yes. Yes, obviously, if you are a good delegate, you should be able to lead the committee because leadership is a skill that will help you everywhere. Hmm. Be it your job in your future, your college, all the events that you organize, आपके घर में भी. Hmm. So that leadership skill is very necessary. ठीक है. So अगर वो delegate उस चीज़ पे focus कर रहा है, very good. उसके अलावा there are 2 or 3 tips which I generally give in my committees. First is that delegate needs to understand the character or the personality of the country that they are representing, which people fail to understand. So if I am someone who is, let's say, मेरी बात कर लेते, I'm very calm, I do not engage in arguments, I don't like them, Yeah. इतना ज़्यादा, ठीक है. So then if I am doing DPRK or Russia or US, then I'll not do justice to that Yeah. portfolio. And on the other hand, if there's someone who is very argumentative, then they can do a DPRK, a Russia, let's say, or a USA. तो आपको आपकी कमेटी, आपकी कंट्री की पर्सनालिटी समझनी बहुत ज़रूरी होती है. तो आप अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से ढाल सकते हैं. Hmm. दैट इज समथिंग आई टेल ऑल माई डेलीगेट्स कि आप वो चीज़ करिए. दूसरा, आई डोंट नो व्हाई, पर अ लॉट ऑफ डेलीगेट्स आर नॉट इवन लिसनिंग इन द कमिटी. मैं ये चीज़ हर बार बोलता हूँ दैट द बेस्ट रिसर्च वन कैन डू is during the committee. Listen to the speeches. Yes, if you put me as a delegate right now, I don't require 50 पेज की research, 2 फाइल, ठीक है. I don't require 10 documents in my laptop. I just require a pen and a notepad. I'll listen to the delegates and I'll understand कि बात क्या चल रही है, and then I'll ask questions. And I ask questions not. This is also what I see when I have point of information, that the questions are not constructive. If someone has introduced an idea, ask them then how you can implement it, or give advice how we can improve that idea. We are here to work together. This is also I share in my committee that the name is United Nations. United. Yeah. So every delegate should put some emphasis on that part कि आप यूनाइटेड पे फोकस करिए. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि साथ में काम करने वाली एक चीज़ मिसिंग है आजकल. लोग सुनते नहीं है दूसरे डेलीगेट का. दूसरा, और वापस जैसे मैं बोला कि इस पे मैं बहुत बात कर सकता हूँ, पर दूसरी एक और चीज़ है विच आई फील इज लैकिंग समवेयर, एंड दैट इज कि लोग व्हाट अबाउटिज्म इज अ टर्म that was introduced because of Donald Trump. So whenever you ask him a question, his reply to or his answer to a question will always be an answer or a question. Sorry. Yeah. So whenever you ask him a question, he will reply with a question. So if I say, sir, you have done this, then the answer will be, what about this? What about what you have done? So that is something I see in MUN, that whenever you ask a question, they will reply with a question. Never do that. Always try to answer first and then pose a question. So that is something that is missing. Also, one thing every good debater should do
and this is something that is also lacking in a lot of delegates, is that they twist the argument. So if you say that I believe in capitalism, then I will say, so you are against equality. You want people to die. Obviously that is not what you meant. So what people do, they twist the argument, and that is, and उसमें होगा ये that you will feel that I have not heard you, and when I speak you will do the same. तो कहीं ना कहीं आप उनकी बात को ट्विस्ट करके आपको पूछोगे कि ये तो आप ये कहना चाहते हैं, and that is something we have adopted from our media, I guess. So that is something we should not do. उल्टा, if you, what I used to do when I used to delegate, कि मैं अगर आपको एक सिनारियो रखेंगे ना, तो मैं उसका बेस्ट वर्जन रखूंगा. अगर आप बोलोगे ना कि 7% ग्रोथ होगी, आई से अरे सर अज्यूम करे 10% हो रही है, चलिए, पर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएगी, उसका क्या. सो ऑलवेज डिफेंड और ऑलवेज अटैक द बेस्ट आर्ग्यूमेंट रादर देन पिकिंग आउट द वर्स्ट थिंग. तो अगर आप वो करेंगे ना, तो सामने वाले को रियलाइज होगा कि अच्छा इन्होंने सुना एंड दे आर चैलेंजिंग माई बेस्ट सिनारियो, एंड दैट इज हाउ यू नो दैट यू आर डिबेटिंग. तो दैट इज समथिंग आई फील, दीज आर द थिंग्स आई टेल माई डेलीगेट्स कि आप ये चीजें करिए. मैंने ये भी एक चीज नोटिस की है दैट यू नो इफ यू आर बीइंग अ डेलीगेट, कहीं ना कहीं तुम्हें पहले पता होना चाहिए दैट क्या मोटिव से आप वो एंटर कर रहे हो वो कमिटी में, व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग. तो आप किस, मतलब वो थोड़ा सिंपथाइज करना पड़ता है वो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को. ऑल्सो द एजेंडा दैट इफ यू आर अ लीडर ऑफ अ कंट्री, तो आप क्या सोच के वो एंटर कर रहे हो, किस मोटिव से जा रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आना चाहिए या क्या प्रॉब्लम से फोकस होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं अगर वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट पहले से ही होता है तो उससे भी काफी फर्क पड़ सकता है. सो ट्रू, I'll share a small anecdote. ठीक है, it was my first MUN and I was the delegate of Libya and we were discussing Syrian crisis. First time delegating, I went and then I realized that Lebanon was available. okay. So my chair asked कि आपको किसी को change करना है. All my research, I had done it on Libya. I changed my country in an instant. Lebanon के बारे में सिर्फ मुझे इतना पता था that 25% population of that country was at that time of consisted refugees. Okay. So I realized it's a great country. It's a great role क्योंकि सीरिया से लेबनान में जा रहे थे refugees. तो मैंने सिर्फ सारी रिसर्च जाने दी, एक लाइन के ऊपर मैं लेबनान बन गया. And then दूसरे दिन I did all my research. ठीक है, so obviously like every first timer I researched a lot on USA. I don't know why we do it. I don't know why delegates still do it. P5. Yeah, but US is special. USA तो हाँ, आप China किसी को पूछो हाँ. फ्रांस का पता है, बोलते नहीं हमको नहीं पता है, पर US का सब 8-10 पेज तो करके लेके आएंगे. So like a first timer I also did that. तो मैं 10 पेज की रिसर्च करके गया था USA के अगेंस्ट, और मैंने पहला पेज बोला एक स्पीच में, और डेलीगेट ऑफ यूएस आया मेरे पास अनमॉड में कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको. आई वाज लाइक देखो मैं क्यों आया हूँ इस MUN में. सो दिस इज ऑल्सो अ टिप दैट आई विल शेयर इसके बाद, इस एनेक्डोट के बाद. तो मैंने बोला कि देखो मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरी कंट्री में 25% पॉपुलेशन रेफ्यूजी की है, हमको चाहिए पैसे, हमको और कुछ लेना देना नहीं. आप लोग लड़ो एक दूसरे से, आप एक दूसरे को अक्यूज करो, हमें क्या, मुझे चाहिए पैसे. मेरे सिटीजन्स की जरूरत अभी ये है, मेरी कंट्री की अभी ये जरूरत है. देन डेलीगेट ऑफ यूएसए सेड कि ठीक है कितने पैसे चाहिए, उनको तो वैसे भी अपनी जेब से नहीं देने. आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट बट वी सेड सम रैंडम अमाउंट कि $100 million, $1 billion विल बी प्रोवाइडेड इन एड बाय यूएसए. उन्होंने GSL में स्पीच दी कि वील बी डोनेटिंग दिस मच अमाउंट टू लेबनान, और उसके बाद मैंने वो 9 पेज थे उसका एक भी यूज नहीं किया. आई डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट यूएसए. So this is also a tip that I would like to share with all the delegates who are listening, that you are going there with a purpose. You think like a delegate. ठीक है, आप ये समझिए कि आप आए हैं कहीं से इंडिया में, ठीक है, 2 दिन डिबेट करके वापस घर जाना है. तो आपकी गवर्नमेंट आपको पूछेगी 2 दिन में आपने क्या अकम्प्लिश किया. आप मैं वहां जाके क्या बताऊं कि मैंने ना यूएसए को ये 2 लाइन बोल दी थी, मजा आ गया था, सब खुश हो गए थे. दैट इज नॉट द पर्पस. आप वहां वो करने नहीं गए. आप बोलोगे कि मैंने चाइना को ये बोल दिया, सबने टेबल ऐसे टैप किया, मजा आ गया था. आप एक डिप्लोमेट की तरह सोचो कि आप एक जॉब पे हो, आप 2 दिन यहाँ पे आए विद एन एजेंडा. आपकी गवर्नमेंट ने आपको भेजा है कि हमारी ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके आना. दिस इज वाई यू आर हियर. और ये मैं बोलता हूँ, आप ये सोचिए, तो जब मैं लेबनान था मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला होगा कि वे पैसे लेके आना. हमें फर्क नहीं पड़ रहा यूएसए से लेके आओ, चाइना से लेके आओ, पैसे लेके आना. ठीक है, एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट हाई कमेंडेशन in my first MUN. Humility, guys. So yeah, but luckily I won, and because I feel कि I knew my why I was there as a delegate of Lebanon.
तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप ये चीज़। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाते हो एमबीएन में कि आपकी कंट्री वहाँ पे क्यों है और क्या अचीव करना चाहती है, और 9 पेज थे मेरे पास यूएसए के अगेंस्ट, मैं बोल सकता था और टेबल लोग ऐसे टैप करते, पर कोई पॉइंट नहीं था। because मेरा support काम हो गया। था पैसे लेके आना और मैं लेके आ गया। मेरे ब्लैक कार्ड पे सबने लिखा है, आज भी वो ब्लैक कार्ड है मेरे पास, एवरीवन हैज रिटन कि भाई कितने पैसे मांगेगा, बंद कर दे, ठीक है मिल गए पैसे, बट दैट वाज माय जॉब। Yes. सो या व्हाट यू सेड कि एक पर्पस पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे एज अ डेलीगेट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. और जैसा आपने पहले लीडरशिप की बात की थी दैट डेलीगेट्स को भी एक लीडरशिप रोल लेना चाहिए। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर आल्सो, सो कहीं ना कहीं उनका भी ये पर्पस रहता है दैट लाइक उनका भी एक मोटिव होना चाहिए दैट दे आर इंश्योरिंग दैट डेलीगेट्स अच्छे से हर एक डेलीगेट अच्छे से कमिटी में फ्रूटफुली डिस्कस कर पा रहे हैं। सो आपके हिसाब से लाइक व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर शुड लाइक ध्यान देना चाहिए उन्हें सो दैट दे कैन बेटर देमसेल्फ? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल। फर्स्ट तो आई डोंट थिंक उनका एक मोटिव होना चाहिए, उनका यही मोटिव होना चाहिए। आप वही चीज करने वहां पे गए, ठीक है। सो जैसे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट और व्हाट मेक्स अ ग्रेट ईबी मेंबर, ओके इंटरेस्टिंग। सो पहली चीज जो आपने बोला कि डेलीगेट्स, मैं ये मानता हूँ कि डेलीगेट्स आर पेइंग 2000-3000 रुपीज ऑफ देयर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी टू बी देयर। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स ने दे दी डेलीगेट किट, उन्होंने लंच दिया अच्छा था नहीं था, डिनर दिया अच्छा था नहीं था, सोशल से, वो सब एक अलग चीज है। आप उनको कमिटी में अगर 2 दिन अच्छी डिबेट देंगे ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि पनीर कम था कि रोटी ऐसी थी, सोशल अच्छे थे कि नहीं। तो समवेयर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनके जो पैसे खर्च करके आ रहे हैं उसका वर्थ आप उनको दें। मैं कई बार ये देखता हूँ दैट अ लॉट ऑफ ईबी मेंबर्स try to prove a point that why they are there. You don't require that, you don't need that, you are there for a reason. Delegates को पता है कि अगर ये बंदा ईबी बन के बैठा है या ये मैम ईबी बन के बैठे तो क्यों बैठे, क्योंकि उनको नॉलेज है। आप उनको कुछ प्रूव करने नहीं बैठे वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज जो सीखने वाली चीज है कि भाई ट्राई करो हर कोई बोल के जाए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे वापस ये बहुत लंबा आंसर हो सकता है। सो ईबी मेंबर या तो एक चीज है कि पहली चीज जो मैं बहुत एक प्रॉब्लम देखता हूँ ईबी मेंबर्स में इज दैट दे बिकम डेलीगेट। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके अंदर के डेलीगेट को मार डालो, कि आप वहां आपको डेलीगेशन करना है, डेलीगेशन करो, ठीक है। मैं जीएनएलयू में भी डेलीगेट बन के गया था बिकॉज माय सीनियर्स वर चेयरिंग, ठीक है, तो मैं डेलीगेट बन के गया था। उसके अलावा मैं डेलीगेट नहीं बनता हूँ। आप वहां पे डिबेट करने नहीं है, आप वहां पे ये प्रूव करने नहीं है कि आपको रूम में सब है उनसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। वो एक चीज मैं बहुत देखता हूँ। ये जब मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में भी 2-3 ईबी मेंबर्स आएंगे जो ऐसा करते हैं, और जो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी आएंगे। तो दिस इज व्हाट आई टेल माय ईबी मेंबर्स, माय फेलो ईबी मेंबर्स, व्हेनेवर आई गेट अ चांस, कि अपने अंदर का डेलीगेट पहले तो आप मार दीजिए, ठीक है। आप डिबेट मत करिए, यू आर देयर टू मॉडरेट डिबेट, दैट इज योर रूल, ठीक है। यू ट्राई टू गिव देम अ ग्राउंड, अ प्लेटफॉर्म वेयर डेलीगेट डिबेट एंड लर्न, ठीक है। दूसरी चीज आई फील कि ईबी मेंबर्स की वो एयर ऑफ सुपीरियोरिटी नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उनको डेलीगेट्स के लेवल पे आके बात करनी है, सो दैट डेलीगेट्स भी साथ में फ्रेंडली हो पाए अच्छे से। यस, अब जैसे फ्रेंडली वाली चीज भी, और उसके अलावा जैसे नॉलेज बेस। अब मैं अगर सीधा जाके उनको एचआरसी का मैंडेट समझाऊंगा कि ये होती है स्पेशल प्रोसीजर होती है, ये होता है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। आपको ये करना है कि आप उनके लेवल पे जाइए और उनको चीजें समझाइए जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई शशि थरूर बहुत ग्रेट राइटर है बिकॉज वो ऐसे भारी वर्ड यूज करते नहीं। अ ग्रेट राइटर इज समवन जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत कम शब्दों में आपको एक थॉट एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो आप, अब मैं, कोई मुझे पूछेगा कि चलिए आप हमें ये बताइए इंडिया रशिया रिलेशन पे, तो मैं उस पर 2 घंटे बोलूंगा तो मतलब नहीं। मैं उनको 5 मिनट में उनकी लैंग्वेज में कितना जल्दी समझा पाता हूँ। वो एक कोट है ना, दैट इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ 6-year-old यू डोंट अंडरस्टैंड इट। सो दैट इज समथिंग ईबी मेंबर्स शुड डू, कि जितना आप उनके लेवल पे जाके उनके बाद उनको चीजें समझाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। ज्यादा डिबेट मत करिए। दूसरा, आपको कमिटी का नेचर समझने की जरूरत है। तो हर कमिटी की एक तासीर होती है, लेट्स से डेलीगेट्स की एक तासीर होती है कि देयर आर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए एक कमिटी है जिसमें 20 डेलीगेट्स है हु आर एक्सपीरियंस्ड, देन यू कैन बी अ बिट टफ ऑन देम। यू कैन से दैट आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू गाइस, कि आई वांटेड यू गाइस टू डिस्कस दिस बट यू हैव नॉट डन इट। बोलिए,
you know that these guys will respond. But if I am in a committee where there are 40 first timers, I know I can't do that. I know I can't tell that I'm disappointed, वरना वो और शेल में चले जाएंगे. Yes. So I need to motivate them. पर फिर मुझे पता होना चाहिए कि वो कितना मोटिवेशन. अब वो बुरा कर रहे हैं तो मैं शायद फर्स्ट डे बोलूंगा कि चलो कोई नहीं, पोटेंशियल है, कल रिसर्च करके आना. दूसरे दिन आई विल टेल देम कि अब मैं थोड़ा टफ होऊंगा बिकॉज यू हैड अ डे. तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता है. हमको डेलीगेट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, ना कि डेलीगेट्स हमारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे. यू आर देयर टू सर्व देम. ठीक है, आप उनकी हेल्प करने, उन्होंने जो टाइम और पैसा खर्च किया है उनका वर्थ देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप कोई सेवा करने नहीं बैठे हैं वहां पे. तो वो एक चीज होती है कि ईबी मेंबर्स खुद एडजस्ट नहीं कर पाते कमेटी से. दैट इज व्हाट आई फील इज मिसिंग. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वापस ह्यूमिलिटी, अ लॉट ऑफ एमयूएन्स एज अ चेयर. पर कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज ट्राइड माय बेस्ट कि मैं कमेटी के हिसाब से अपना चेयरिंग ढालूं, ना कि कमेटी को मेरी तरह से ढालने का प्रयास करूं. So that is all. These are the things I feel EB members should do. तो yeah, a lot of other things, पर podcast यहीं पे रुकना पड़ेगा. तो जो भी EB members को सवाल हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी. जैसा लाइक हमने देखा भी है कि हम अगर कोई स्टूडेंट को समझा रहे कि एमयूएन इस वजह से आपको आना चाहिए, तो पहला यही होता है कि यू नो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी एंड ऑल. एंड आई गेस वो भी यही मोटिव से आते हैं दैट पहले उनको ये ऐसा डिस्कशन किस तरह से करते हैं, हाउ यूएन इन अ सिमुलेशन वर्क्स. तो ये सब आई गेस मेजर पर्पसेस होते हैं. एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑर्गेनाइजर्स, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स, टू इंश्योर दैट ये सारे चेक्स पहले हो जाए. सो डेफिनेटली या. सो भैया आप लाइक यू हैव बिन not just in executive board member in not just in Gujarat circuit, but you have been to other states also. So कुछ difference दिखता है या in the level of quality of delegates or anything, like आपने कोई difference notice किया है in the Gujarat circuit and others? See, difference I feel कि ऐसा कोई major difference है नहीं. Okay. You will find good delegates यहाँ पे, you will find good delegates बाहर भी. ठीक है, in the end I don't feel circuit से कोई difference आएगा. हाँ, कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत डिफरेंस दिखता है. द वे दे ट्रीट ईबी मेंबर्स, उसमें शायद आप डिफरेंस देखें. द वे दे ऑर्गेनाइज एमयूएन, शायद आप उसमें डिफरेंस देखें. जैसे आई हैव डन अ कॉन्फ्रेंस IWS, वहाँ पे दे हैड कमिटी फॉर स्पेसिफिक स्कूल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स. सो लाइक से 6th से 9th के बच्चों की एक कलर कमिटी है, 10 से 12 स्टैंडर्ड वाले के बच्चों की एक कमिटी है. सो दैट इज, दीज आर द थिंग्स यू सी. सो ऑर्गेनाइजिंग में शायद डिफरेंस होगा. डेलीगेट्स में आई डोंट थिंक इतना डिफरेंस है. शायद कहीं ना कहीं जैसे हमारी बात हुई थी कि दिल्ली में देयर इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव सर्किट बिकॉज ऑफ द डिबेटिंग कल्चर. आई फील गुजरात लैक्स इन दैट डिपार्टमेंट, द डिबेटिंग कल्चर, जो शायद चेंज होना चाहिए. व्हेन इफ आई एम गोइंग आउटसाइड, ठीक है, ऑफ गुजरात, नॉट जस्ट फॉर एमयूएन बट फॉर एनी पर्पस, गुजरात की इमेज यही है कि हाँ बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जुगाड़ू लोग हैं, बहुत स्वीट लोग हैं. स्टूडेंट्स अब्रॉड चले जाते हैं. हाँ, स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू एसोसिएट विद गुजरात. व्हाइल अगर मैं आपको बोलूं कि चलो कोलकाता हो गया, बंगाल हो गया, तो आपको कहीं होगा कि इंटेलेक्ट. दिल्ली की बात हो गई तो आपको होगा कहीं डिबेट. बेंगलोर हो गया तो कहीं होगा स्टार्टअप. व्हाई नॉट दैट फॉर गुजरात? हम क्यों गुजरात को एसोसिएट नहीं कर सकते विद अ गुड डिबेटिंग कल्चर? So be it MUS or be it other competitions, I feel this is very necessary. This is the difference I want कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को शायद कम प्राधान्य दिया जाता है या कम इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो वो एक चीज़ चेंज हो तो कहीं ना कहीं आई फील द पोटेंशियल इज देयर. आई हैव seen the kids of Gujarat, I have seen the delegates of Maharashtra or let's say MP और राजस्थान. तो वो है, पोटेंशियल है, पर कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म की कमी है जो और डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड कि कॉन्फ्रेंसेस का वाई चेंज हो रहा है. बट देयर आर गुड डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस, बी इट आर्ग्यू फेस्ट. आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ जज इन द फर्स्ट आर्ग्यू फेस्ट, और वहां से बहुत बच्चे निकल के आए हु आर बिकमिंग वेरी फेमस इन द सर्किट राइट नाउ. सो व्हाई जस्ट वन आर्ग्यू फेस्ट? व्हाई डोंट वी हैव many other debating competitions, not in just Ahmedabad, but also in tier 2 cities of Gujarat as well. I have been to Rajkot, I have been to बड़ौदा को tier 2 बोल रहे हो तुम, देख लेना, ठीक है. तो राजकोट भी ऐसे, ठीक है, सॉरी, बट आई हैव बीन टू tier 2 cities in a sense that वहाँ पे शायद इतना एमयूएन कल्चर नहीं. आई हैव सीन ग्रेट डेलीगेट्स देयर एज वेल. तो वहाँ पे कहीं ये चीज़ों को ले जाने की जरूरत है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अच्छी डिबेट करनी, अच्छा एमयूएन देखना है तो आप सिर्फ अहमदाबाद आइए, HLCC आइए. वापस ह्यूमिलिटी, पर उस चीज की जरूरत नहीं है. कहीं ना कहीं वो चीजें वहां पे दिखनी चाहिए, देख सके हम तो अच्छा होगा. तो सर्किट सेम है,
पर वहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और इसलिए शायद वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, तो होपफुली बहुत जल्द चेंज होगा गुजरात में। और मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स लाइक स्पेशली सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी काफी सारे दिल्ली में जाते ही है। लाइक मेरा फ्रेंड गया था एंड आई गॉट टू नो कि वहाँ पे काफी ज्यादा मनी का कल्चर काफी एक्टिव है। तो आई गेस वो भी हो सकता है स्टूडेंट का डेमोग्राफिक कैसा है एंड ट्रू। सो अभी हम अगर यूएन की बात करें, देयर इज दिस वन क्वेश्चन आई गेस काफी लोगों को होता है, दैट इज यूएन स्टिल रेलेवेंट? लाइक हम यूएन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बट वी नो दैट काफी सारे रेजोल्यूशन पास हुए हैं, बीट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, बीट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इवन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रूलिंग्स आते हैं वो सब आ जाते हैं, मतलब रिजोल्यूशन पास हो जाता है, काफी सारी चीजें होती है, बट देन रियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं दिखता है इतना ज्यादा। यू नो अभी भी बॉम्बार्डिंग्स होती है, अभी भी वो टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सो आपके हिसाब से इज यूएन स्टिल रेलेवेंट इन द करंट सिनेरियो? Okay, that is also another interesting question. Yes, the United Nations is still relevant. I feel certain bodies of UN has lost its relevance, while certain bodies are still relevant. Like So let's say वापस HRC, ठीक है? As Mr. HRC, it is difficult to say this, but कहीं ना कहीं HRC का relevance कम हो रहा है, ठीक है? Because उनके पास उतनी powers ही नहीं है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं द कमिटीज लाइक UNEP, ECOSOC, ECOFIN, CND, ODC, these are the committees which are still working because you need a common ground for countries together and discuss these things. मल्टीलैटरल वर्ल्ड हो रहा है, हम दूसरे ब्लॉक्स देख रहे हैं, पर ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जहाँ पे आप एक ब्लॉक से काम नहीं कर पाएंगे। कल अगर ब्रिक्स काम कर रहे हैं तो एनवायरमेंट अकेला नहीं बचा पाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ों में आपको साथ में आके काम करना ही पड़ेगा। So I feel the certain bodies of UN are still very relevant, while certain have become irrelevant because of the countries only. और कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में भी इश्यूज है। UNSC, ये हमेशा से डिबेट चल रही है, रीस्ट्रक्चरिंग UNSC, वीटो पावर। अब वो वीटो पावर जब दी गई थी तब वो सुपर पावर्स थी। देयर आर अ लॉट ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, ब्राजील, इंडिया, जापान, या जर्मनी। So not emerging Germany, but yeah, still there are a lot of countries जिनका बहुत relevance है, तो कहीं ना कहीं उनको restructure करने की जरूरत है। So I feel relevance है, but restructuring की बहुत जरूरत है। While some committees are working wonders, some committees are lacking because of the role that is played by the countries or because of the nature or the structure of that organization. Especially मैंने दो चीज़ों पे ज़्यादा देखा था। एक रेफ्यूजीज का जो दे आर लाइक उनको असाइलम मिल रहा है प्रॉपर दूसरे कंट्रीज में, उधर भी कहीं ना कहीं आई गेस यूएन का रोल रहा है, बिकॉज वो एरियाज में शायद पहुंचना नॉर्मल नेशन के लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज दे हैव सम रिलेशन विद एनी अदर कंट्री, और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। इवन हमने इस बार एजेंडा भी रखा था यूएनजीए में, पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सो कहीं ना कहीं काफी नेशंस है छोटे छोटे जहाँ पे यूएन का अभी भी हेल्प आ रहा है, एड आ रही है, वहां पे पहुंच रही है। तो शायद वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रोकने में दिक्कत हो रही है, बट आई गेस जो कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स है लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, लाइक थोड़ा पीस कीपिंग हो गया, थोड़ा रेफ्यूजीज के रिलेटेड हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं यूएन इज स्टिल अ बिट इफेक्टिव, तो ऐसा हम बोल सकते हैं आई गेस। ट्रू। और ऑल्सो इफ यू लुक एट हिस्ट्री, लीग ऑफ नेशंस देखिए, या इफ यू लुक एट द पास्ट, वॉर के नंबर्स तो कम हो गए ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ यूएन, पर कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट आवर हिस्ट्री, अगर आप यूएन के बाद अगर आप अभी तक देखें यूएन के फॉर्मेशन के बाद, तो आई डोंट थिंक देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ वॉर्स। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूएन। उस टाइम पे तो उनका काम करने का उतना इम्पैक्ट आ भी नहीं सकता था बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एट दैट टाइम। और कहीं ना कहीं वॉर्स कम हुई है, कहीं ना कहीं वॉर्स नहीं हुई। दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स। we have not witnessed a full scale war. Yeah, पूरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, 2-3 नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और ऑब्वियसली उसका क्रेडिट आई एम नॉट सेइंग गोस टू यूएन ओनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। सो देयर इज आल्सो अ कोट आई यूज्ड टू से एज द चेयर ऑफ डाइसेक, वेरी कंट्रोवर्शियल, वेरी आयरॉनिक, दैट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज अ गन इज अ पीसफुल सोसाइटी. So when you know that if you attack someone, you might also pay a price for that. So right now, जैसे आप देखिए पाकिस्तान इंडिया हो गया, ठीक है, we have seen wars. पर न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद there has not been a war.
बिकॉज पता है दोनों जगह डिस्ट्रक्शन होगा, Yeah. इकोनॉमी लॉस. Yeah, so I'm not saying UN की वजह से नहीं हुई है वॉर. Obviously, जैसे nuclear weapon is just a single reason. There are a lot of other reasons as well. But I don't think UN का relevance नहीं है. पर हाँ, उसको restructure करने की जरूरत है. It is high time that we do it. So let's see how UN looks like after 20-30 years. So hopefully there is a change. But let's see. तो SDG goals वो सब भी आ रहे तो काफी लॉन्ग टर्म तो है प्लानिंग. लेट्स सी हाउ इट Yeah. गोस. सो अगर अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, सो आई गेस वर्ल्ड में इन अ लॉट ऑफ नेशंस इन अ वेरी बिग इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूके, इवन रशिया, आई गेस इलेक्शंस हो रहे हैं. इंडिया में अभी हुआ इलेक्शन खत्म, एंड यूके में अभी आफ्टर 14 years लेबर पार्टी वन. सो क्या ये जो ग्लोबल इलेक्शंस होते हैं उसमें इंडिया के जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है उनको क्या इन सब से कंसर्न होना चाहिए? लाइक जो एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज, क्या ये इलेक्शन से इंडिया का जो करंट स्टैंड है इन दिस जियोपॉलिटिक्स, क्या वो काफी चेंज हो सकता है या काफी लाइक वी कैन सी फ्लक्चुएशंस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइम मिनिस्टर और वी कैन सी द प्रेसिडेंट इन डिफरेंट इकोनॉमीज? Okay. So we'll have to break Yeah. this question in different parts. First of all, when we say India, ठीक है, कि क्या इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, we unfortunately look at the demographic or the people who live in tier 1, tier 2 cities who are even aware about these things. अब आप अगर गांव में जाओगे उनको नहीं फर्क पड़ रहा है कि भाई हाँ. यूएस का प्रेसिडेंट, उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको है कि भाई हमको खाना मिल रहा है, हाँ. हमको जॉब मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज्यादा जरूरी है. स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक. तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए हैं. हम और आप जो प्रिविलेज क्लास है, जो ऐसे एसी रूम में बैठ के पॉडकास्ट करके बोल सकते हैं कि क्या यूएस में ये होगा तो इंडिया पे इम्पैक्ट आएगी. हाँ, ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगी, और वो इम्पैक्ट का रिजल्ट ये लोगों को, इन लोगों पे भी आएगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन, एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन. ठीक है, तो इम्पैक्ट आएगा, पर कहीं ना कहीं फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस दिस इज नॉट अ कंसर्न. एंड उनका कंसर्न उनकी जगह पे सही है. Now coming to us, the people who care about these things, yes, obviously these things do play a role, but I feel India is in a position where it will grow, irrespective of the leader that our country has or the leader all the other countries have. So, for example, China grew rapidly, Yeah. not 1990s because not because of external backing. Okay. So I feel India, obviously it is relevant, but I don't think our focus or our concern should be there. The world cannot ignore India for long. They cannot ignore India, because we have a huge role to play in the future. Okay? I mean, we are the biggest democracy. Yeah. Okay, we have a demographic dividend. Yeah. Let's see if we turn it into a demographic dividend. If we do not, it will turn into a demographic disaster. So yeah, it is in our hands. पर वही कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज का रेलेवेंस थोड़ा बहुत कम है. हम अगर ग्रो करना चाहे तो हम कर ही सकेंगे. सो या द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, वो रोल होगा ही कहीं ना कहीं. एंड आई फील दैट पावर, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, पावर कीप्स शिफ्टिंग. अब अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज व्हेन वी लुक एट हिस्ट्री, कहीं ना कहीं हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम 1600 1700s तक जाते हैं. ठीक है, बट इफ यू लुक एट human civilization, if you start from Indus and if you focus यहाँ पे, ठीक है, तो वो टाइमलाइन बहुत ज्यादा है. और उसमें 2500 BC से लेके 1600 1700 तक इंडिया है 25% शेयर, एटलीस्ट 25% शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, गोल्डन बर्ड. या फॉर अ रीजन. तो अगर हम जब यूएस को देखते हैं, यूएस एट इट्स पीक है 25%. India had it not just for 200 years. We had it for 2005, let's say 2500 BC to 1600. How many years that it would make? 600 BC. Yes. Yeah, तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया. ठीक है, 4000 साल, 3500 साल से we have been a global power. ठीक है, जो हिस्ट्री में छोटा सा टाइम आया है, ये 1600 1700 से बाद जो 2000 अभी तक का, इट्स अ ब्लिप. हम उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उस चीज पे बहुत फोकस करते हैं, बट इफ यू लुक एट द टाइमलाइन, इट्स जस्ट अ ब्लिप. तो वो कहीं ना कहीं वो इंडिया का जो ग्रोथ है वो कहीं ऐसे गया, बट इट विल राइज. पावर वाज इन वेस्ट ईस्टर्न एशिया, इन साउथ एशिया. चाइना एंड इंडिया यूज्ड टू डोमिनेट. चाइना आल्सो हैड 25% शेयर. सो सिर्फ दो कंट्रीज का 50% शेयर था.
तो पावर कहीं ना कहीं फ्लोट होते हुए अभी वापस यूरोप पहुंची है, Yes. वो वापस आ रही है. दैट पावर विल शिफ्ट. ठीक है, यू कैन नॉट पुट इंडिया डाउन फॉर वेरी लॉन्ग. वो ब्लिप जो था वो चला गया है. तो कहीं ना कहीं इन द अपकमिंग 100 years India and China will dominate the world. Now it is up to India and China to work together. How they are utilizing the Yeah, dividend. so that is an interesting topic as well if you like to discuss it. Yeah. So, so this is what I studied in my political science. What I studied in political science कि when two people are fighting, let's say A and B are fighting, I am C, ठीक है, मुझे decide करना है. तो A strong है, B weak है, तो मुझे किसको support करना चाहिए? A lot of people will say A को support करना चाहिए क्योंकि वो strong है, वो जीतेगा, उसके बाद हमको advantage होगा. पर नहीं, हमको B को support करना चाहिए. क्यों B को support करना चाहिए? तो A और B fight करते रहे. बैलेंस रहे और कंपटीशन. बैलेंस का नहीं है कुछ, कंपटीशन हटाओ. अगर A B के साथ फाइट करता रहेगा तो A ग्रो नहीं करेगा ना B ग्रो करेगा. एंड दिस इज व्हाट happens. Yeah, so I'll tell you because जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट था, यूएसए स्टार्टिंग में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था. सो इंडिया कुड नॉट ग्रो. उनका ये नहीं था कि पाकिस्तान उनका इंटरेस्ट है. अब राइट नाउ दे सी दैट चाइना इज कमिंग फॉर दैट नंबर 1 स्पॉट. बिल्कुल. एंड व्हाट दे सी कि नेक्स्ट कंटेंडर कौन हो सकता है जो उनको चैलेंज करे. एंड वी नो इंडिया इज अ कंटेंडर इन दैट रिगार्ड. डेफिनेटली. So that is why they are supporting us. It is not because they are very friendly. ठीक है. There is also a saying that USA does not lose wars. It loses interest. उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर वो मूव ऑन कर लेंगे. तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो चाहते हैं कि चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे. ठीक है, क्योंकि चाइना एज वी नो इज द वर्ल्ड फैक्ट्री यस. एंड वी आर इंडिया इज द वर्ल्ड ऑफिस. हां. If you look at Yes, our outsourcing. if you look at our Services. tertiary sector, the offices or the आप देखिए अभी यूएस में हाउ मेनी कंपनीज के सीईओ आर इंडियन. सो सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज थ्राइविंग बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द डेमोग्राफी. सो इफ यू हैव अ वर्ल्ड फैक्ट्री एंड अ वर्ल्ड ऑफिस just in these two countries, Very the small immediate part, neighbors, yeah. so the power will shift. Now it is up to India and Indians to realize. And obviously I feel हमको बहुत problem है कि कहीं ना कहीं we see China as an enemy. If we stop, and if also China also does that, if we both stop that image that is created, then it will be a great thing for India and China, for India to grow, because China तो कर ही गया है. ठीक है, वो तो पीक. तो अब इंडिया की बारी है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट व्हाई बोथ द नेशंस आर फाइटिंग. एक तो डेफिनेटली जो जियोग्राफिकल कंसर्न है, जो बाउंड्रीज का कंसर्न है, एंड कहीं ना कहीं चाइना नहीं चाहता है कि यू नो इंडिया उसके लेवल पे आए, बिकॉज चाइना हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली. वी कांट लाइक नेग्लेक्ट दैट. एंड अभी जैसा मेरे को याद है, एलॉन मस्क had to visit India for like establishing Tesla की फैक्ट्री, बट उन्होंने अचानक कैंसिल कर दिया. दे वेंट टू चाइना एंड अभी उनका वो अभी भी प्लान नहीं बना दैट they again come to India. So I guess China is still very like focused upon you know like India को बिल्कुल ऐसे नीचे रखे and you know difference maintain रहे, क्योंकि China has lost its demographic dividend, we can say. and अभी crisis भी काफी हुए थे, इकोनॉमी भी काफी डाउन टर्न में गई थी. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैलेंस लाना अभी भी मुश्किल होगा, बिकॉज डेफिनेटली इंडिया का अभी स्टार्ट होगा एंड चाइना अभी पीक पे है, जैसे जापान का हुआ दैट दे वेंट डाउन अभी 30 साल बाद. But I'll contradict you on this. Yeah. China does not care about us. China is looking at USA. उनका कंसर्न ये नहीं है कि इंडिया थर्ड है, इंडिया फोर्थ है, इंडिया फिफ्थ है. ये हमारे दिमाग में हमने बना लिया है. चाइना इज नॉट इवन competing with us. उनका डिफेंस बजट इज अराउंड $300 billion. We are at $90 billion, 3 times. अगर आप रिसेंट डेटा देखो, मे बी वाइल चाइना वॉज एट इट्स पीक ग्रोइंग, वो हर 4 साल में सिर्फ इंडिया का पूरा जीडीपी अपने जीडीपी में ऐड कर रहे थे. तो डू यू थिंक चाइनीज केयर अबाउट अस? नो. उनका फोकस इज दैट नंबर 1 पोजीशन. हमारे दिमाग में है, और हमारी ये बहुत बड़ी गलती है कि अभी तक हम सिर्फ ये सोच के खुश होते थे कि इंडिया पाकिस्तान से तो अच्छा है. भाई वो फेल्ड स्टेट है ऑलमोस्ट. उससे कम्पीट करके नंबर 1 आने में कोई फायदा नहीं है. हमने चाइना को देखा ही नहीं, और चाइना उसी सेंस में जो हमारे लिए पाकिस्तान है, चाइना के लिए हम. इट इज वेरी हर्टफुल, बट चाइना डज नॉट केयर अबाउट अस. उनकी इकोनॉमी हमारे से ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स बड़ी है. क्यों compete करेंगे वो लोग? उनको क्या पड़ी है कि इंडिया नीचे रहे या ऊपर रहे? तो चाइना इज competing with USA. It is high time that we also stop this
narrative that we are competing with Pakistan, we are competing with China. It is about collaboration. It is about working together. Right now, there is no time to compete. तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट दूर करने की जरूरत है. ना चाइना को हमारी कंपटीशन, वो हमको कंपटीशन की तरह देख रहे हैं, ना हमको चाइना को देखना चाहिए. Very different perspective. एंड आई गेस जो आपने पहले एक बात की थी दैट यू नो द वेस्ट इज लुकिंग एट जो उनको फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ भी वैसा ही हुआ दैट यू नो अभी वो सिचुएशन जो एड वो सब था अभी आई गेस थोड़ा सा कम हो गया है. हाँ, वो इलेक्शंस वो सब की बात अलग है दैट बाइडन इज स्टिल प्रॉमिसिंग देम बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एंड ऑल, बट स्टिल इट हैज रिड्यूस समवेयर. आई गेस जो इंडिया की बात हुई एज यू नो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमने अभी रशिया के लाइक पीएम आर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी he went to Russia and I guess after 41 years he visited Austria also. Yeah. So I guess kahin na kahin this shows that you know India ka dominance has been emerging and you know there is some shift and India is currently a focus in the geopolitical world. So, Yeah, also उसमें I feel कि वापस कहीं ना कहीं we neglect look at the other side. India का importance is also increasing because of the number of people that we have. It's a huge market. yes. कहीं ना कहीं हाँ, अगर आपने इंडिया क्रैक कर लिया, Yes. अगर आपने इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया अपना बिजनेस, it's very difficult because value oriented काफी रहता है, तो वो थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड इन व्हाट सेंस? लाइक पीपल इन इंडिया लुक फॉर कि मुझे इतना पैसा देने में कितना मिल रहा है. लाइक वी हैव सीन दैट मेनी कंपनीज दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन इंडिया बिकॉज दे पीपल इन इंडिया लुक फॉर मैं अगर इतना पैसा दे रहा हूँ तो मुझे इससे डबल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं. दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन दैट. तो मेरे को कहीं ना कहीं आई हैव सीन दैट. हाँ, पर कहीं ना कहीं उनके टारगेट ऑडियंस ये लोग है भी नहीं. So when Starbucks is coming to India, Yeah. they are not looking for these people. They are looking for people who are very okay with paying 500 rupees for a coffee. So they know that India has a market. हाँ, You वो go अभी to प्रीमियम में शिफ्ट हो रहा yeah, है. you go to Bangalore, you go to Mumbai, you go to Ahmedabad. Tier 1 cities are So emerging. tier 1 cities are a huge market. People will pay any amount for that luxury or for that Yes. image. अब अगर आईफोन देखो तो आईफोन अब नॉर्मल है इंडिया में. Yeah. कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ हमारे पास आईफोन हाँ. है, जो हुआ करती थी. Yeah. एक टाइम पे मैकडी पे जाना वाज अ फ्लेक्स कि सीसीडी में बैठते हैं, मैकडी में बैठेंगे ये वाला. अब वो बहुत नॉर्मल है. मैं किसी को बोलूं बर्थडे पार्टी मैकडी में दे रहा हूँ, वो ऑफेंड हो क्या है जाएगा यार? कि इतना चिंदी भाई क्या मैकडी में जाना. तो नाउ इट हैज शिफ्टेड टू टियर 2 सिटीज कि वहां पे वो लोग अब मैकडी में एंजॉय कर रहे हैं. उनके लिए वो बड़ी बात है कहीं ना कहीं. तो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट. इज नॉट दैट दे आर डूइंग अस अ फेवर. उनको पता है कि इंडिया से पैसे मिलने वाले, इंडिया में फ्यूचर है, इसलिए वो आ रहे हैं. हम यही करते हैं दैट व्हेनेवर समथिंग हैपेंस वी हैव दिस रोजी ग्लासेस वाला इमेज कि हमको लगता है कि वाओ इनको हम ये हमको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है. उनका सेल्फिश मोटिव ही है. होता है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन सिटीजन्स का क्या हो रहा है. तो वो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव लेके आना चाहिए दैट वी शुड नॉट बी हैप्पी कि वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. आवर ओपिनियन शुड मैटर कि हमारा इंडिया फायदा हो हमारे रहा है बारे या में क्या सोच रहा है, कि इंडिया हमारे वहाँ है, इंडिया ने हमें बुलाया. Yes. तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव चेंज Shift हो भी रहा होना है. तो और हो तो अच्छी चीज है. Definitely. So we come to the end of this segment. अभी एक special segment है that is rapid Okay. fire. So I'll shoot the questions and you have to quickly answer them. पहले हैम्पर क्या है वो बताओ. मैंने कॉफी विद करण देखा है, मुझे हैम्पर चाहिए तो मैं बताऊंगा ये क्या है. We have some token नहीं, of नहीं, मुझे तो appreciation नहीं बाद दिख रहा है में. आसपास इस वो room पहले में. आपको आंसर करना पड़ेगा and then ठीक है. आपको मैं रैपिड prize फायर इज मिलेगा. नॉट माय थिंग, पर ठीक है आई ट्राई Yeah. टू बी. yeah. So लाइटिंग चेंज होने वाली है ये Ta-ta-ta. ठीक है. चलिए अब Yeah. हमारे करण जौहर जी. Start. So the first question, one quote that you follow religiously. ओके. राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ. ये जैनिज्म से है रिलेटेड. आपने रिलीजियसली बोला तो मैं थोड़ा गया उस तरफ. हाँ. बट नहीं, दिस इज व्हाट आई फील कि यू शुड हैव राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ. Okay. One book that you feel is a must read for everyone. ओके. सी मैं आई होप मैं लगता हूँ ऐसे इंटेलेक्चुअल, पर मैं इतनी बुक्स पढ़ी नहीं है मैंने. हाँ. ठीक है. मैंने 10th स्टार्टेड में, आई डोंट नो व्हाई. अच्छा मैं रैपिड फायर. ओके सॉरी. वन बुक आई विल स्टार्ट विथ व्हाई बाय साइमन सिनेक. लगा ही था. It's a good book. You had mentioned it before. Yeah. Also. Yeah. Now you have to describe the following in one word. Okay. Okay. Yeah. First, Dipin Gadia. पुष्पा.
फायर है, मैं झुकेगा नहीं. Yeah. So yeah, Dipen is Pushpa. Okay. Yeah. Second, HLCCMA. Family. Okay. Now you have to choose any one from. I'll give two options, and you have to choose one from them. Okay. Being an executive board member or being a delegate. Being in OC. Wow. Okay. If you get a chance to be a cabinet minister of India or be an official president of UNHRC, what would you choose? Obviously India. Education minister for sure. Okay. Choose one committee, UNHRC or UNCND. HRC. वरना मेरा नाम ले लेंगे. Mr. UNHRC. Yeah. Scrap हो जाएगा नहीं? HRC. Yeah. Yeah. Now, Israel or Palestine? भाई दंगे कराएंगे आप. हाँ. इसराइल और पैलेस्टीन. भाई ये रैपिड फायर में Yes. एक choose करना पड़ेगा. इसराइल. Okay. Now last, Ronaldo or Messi? रोनाल्डो. यूनाइटेड फैन obviously. Okay. So that's end for this podcast. We have a token of appreciation for you. ना ये मेरा हैम्पल है. अरे बिल्कुल UNEP. For the deputy director UNEP. from the Thank- HSCCM society itself. Thank you. Yeah. So thank Thank you. you, It Rohan. was very glad to hear a lot of insights from you regarding MU and regarding geopolitics. And I hope you had a great time too. I had an amazing time. Thank you for such amazing questions. And as I said, I could go on Yes. for hours discussing these things. We'll continue that off camera or baki. So yeah, it was all. It's Yeah. always fun to have these conversations with you. So thank you. Yeah. And see you at HLCCM.